Hello everyone. Today I have discussed about the topic genetically modified crops. It is the most important and vital topic in the field of or related to the field of agriculture. As you know that it is related to the optional paper of B.Ed. Issues of Conservation and Environmental Regeneration of सेमेस्टर 4। यह टॉपिक B.Ed सेमेस्टर 4 के ऑप्शनल पेपर इशूज ऑफ कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल रीजनरेशन के अंतर्गत यूनिट 2 से संबंधित है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल टॉपिक, especially it is related with the branch of genetics, and genetics especially that means a study of heredity and variation. Heredity that means transmission of character from one generation to the another, and variation that means resemblances found in the individual is known as variation. जब कभी भी आनुवंशिकी विज्ञान की अगर बात करते हैं तो उसमें हेरिडिटी की बात होती है, यानी एक ऐसा आधार फैक्ट्स जिसमें कि एक जनरेशन से यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का हस्तांतरण होता है, जिससे कि एक नए गुण का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि हम जैसा जानते हैं वेरिएशन यानी विभिन्नताएं भी एक जीवों का महत्वपूर्ण लक्षण है, महत्वपूर्ण गुण है, जिसके चलते डीएनए का नया सीक्वेंस बनने के बाद नए अगले जो जनरेशन होती है उसमें वेरिएशन यानी विभिन्नताएं प्रत्येक जीव में पाई जाती हैं। जब मैं ये बात अगर क्रॉप्स यानी फसल के बारे में बात करूं तो यह महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इससे खाद्य की समस्या यानी खाद्यान्न की समस्या का समाधान होता है, यानी भोजन की समस्या का समाधान होता है। क्यों? क्योंकि इस प्रक्रिया के द्वारा एक अच्छी वैरायटी की सीड हमें प्राप्त होती है और जिसका रेट ऑफ कल्टीवेशन वो अधिक होता है, जिससे कि इतनी बड़ी जनसंख्या यानी जितनी मात्रा में भूमि है उतनी मात्रा में अन्न का उत्पादन नहीं होने के चलते बहुत सारे लोग भूखे रह जाते हैं। तो ये एक ऐसा आधार है इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स जिससे कि आप भोजन की समस्या का समाधान कर सकते हैं। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन है, एक क्रांति है, जिससे कि आप एक महत्वपूर्ण जो समस्या है उसका एक महत्वपूर्ण समाधान यानी एक अच्छा समाधान हम देख पा रहे हैं इस क्षेत्र के द्वारा। मैं इसे और विस्तार से बताने जा रहा हूँ। Now, first describe in English genetically modified crops and food security. First, we have emphasized genetically modified crops. Genetically modified crops, GM crops, are plants used in agriculture, the DNA of which has been modified using genetic engineering methods. In most cases, the aim is to introduce a new trait to the plant which does not occur naturally in the species. Genetically modified or GM crops are that type of plants whose DNA has been modified through genetic engineering for inbreeding a new trait to the plant which does not naturally in the species, does not occur naturally in the species. Foods produced from or using GM organisms are often referred to as GM foods. Purpose of GM crops. Purpose of GM crops generally include resistance to certain pest, disease or environmental conditions, or resistance to chemical treatment. Example, resistance to a herbicide. Other proposed of genetic modification of crops is to enhance its nutritional values, as seen in the case of golden rice. Examples: food crops include resistance to certain pest, disease, environmental conditions, reduction of spoilage, herbicide, or improving the nutrient. Examples in non-food crops include production of pharmaceutical agents, biofuels, and other industrially useful goods. Genetically modified crops are made. GM is a technology that involves inserting DNA into the genome of an organism to produce a GM plant. New DNA is transferred into plant cells. Usually the cells are then grown in tissue culture where they develop into plants. The seeds produced by these plants will inherit
the new DNA. Advantages of genetically modified or GM crops. It improves production and raise farmers' income. Indian farmers are still practicing traditional process, hence it is one of the moves to enhance the farm production. It reduces the use of pesticide and insecticide during farming that might be great moves for the betterment of food supply. It can be feed a rapidly increasing population because it so dramatically increased yields. It can produce more in a small area of land. India introduced BT cotton seeds in 2002. It has greatly reduced the use of toxic pesticides. Now, disadvantage genetically modified or GM crops. The production imposes high risk to the disruption of ecosystem and biodiversity because the better traits produced from engineering genes can result in the favoring of one organism. Hence, it can eventually disrupt the natural process of gene flow. Next, it increases the cost of cultivation and more inclined towards marketization of farming that work on immoral profits. The transgenic crops endanger not only farmers but also the trade and the environment as well. It is biologically altered, hence biotech foods may pose a human health risk. The excessive production of genetically modified foods will be rendered ineffective over time because the pest that these toxins used to deter might eventually develop resistance towards them. नाउ इन हिंदी आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें यानी जीएम फसलें कृषि में उपयोग किए जाने वाले पौधे हैं जिनमें से डीएनए की आनुवंशिक इंजीनियरिंग विधियों का उपयोग करके संशोधित किया गया है। ज़्यादातर मामलों में इसका उद्देश्य पौधे के लिए एक नया लक्षण पेश करना है जो प्रजातियों में स्वाभाविक रूप से नहीं होता। आनुवंशिक रूप से संशोधित या जीएम फसलें उस प्रकार के पौधे हैं जिनके डीएनए को आनुवंशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से संशोधित करके पौधों में एक नया गुण पैदा किया जाता है जो प्रजातियों में स्वाभाविक रूप से नहीं होता है। जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड जीओ से उत्पन्न या उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों का अक्सर जीएम खाद्य पदार्थों के रूप में जाना जाता है। संशोधित फसलों का उद्देश्य जीएम फसलों के प्रयोजनों में आमतौर पर कुछ कीटों, रोगों या पर्यावरणीय स्थितियों के प्रतिरोध या रासायनिक उपचारों का प्रतिरोध जैसे एक शाकनाशी का प्रतिरोध शामिल होता है। फसलों के आनुवंशिक संशोधन के अन्य उद्देश्य इसके पोषण मूल्य में वृद्धि करना जैसे कि स्वर्ण चावल के मामले में देखा गया है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे यानी उद्देश्य थे, पर्पस थे। उदाहरण खाद्य फसलों के उदाहरणों में कुछ कीटों, बीमारियों, पर्यावरणीय स्थितियों, खराब होने की कमी, रासायनिक उपचारों का प्रतिरोध जैसे एक शाकनाशी का प्रतिरोध या फसल के पोषक तत्व में सुधार के लिए प्रतिरोध शामिल हैं। गैर खाद्य फसलों के उदाहरणों में फार्मास्यूटिकल यानी मेडिसिन रिलेटेड एजेंटों जैसे कि जैव ईंधन और अन्य औद्योगिक रूप से उपयोगी सामानों के उत्पादन के साथ साथ बायो रेमेडिएशन भी शामिल है। दैट मीन्स जिसको बायोलॉजिकल वेस्ट से भी जो है इसको समाप्त कर सकते हैं यानी रेक्टिफाई करके उसको जो है वह समाप्त किया जा सकता है। आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें बनाएं जैसे कि जीएम एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक जीव के जीनोम में डीएनए सम्मिलित करना शामिल है। जीएम प्लांट का उत्पादन करने के लिए नए डीएनए को पौधों की कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है। आमतौर पर कोशिकाओं को जब टिश्यू कल्चर में यानी ऊतक को जब हम कन्वर्ट करते हैं दूसरे रूप में उगाया जाता है जहां वो पौधों में विकसित होते हैं। इन पौधों द्वारा उत्पादित बीज नए डीएनए को विरासत में लेंगे। आनुवंशिक रूप से संशोधित या जीएम फसलों के लाभ यह उत्पादन में सुधार करता है और किसान की आय बढ़ाता है। भारतीय किसान अभी भी पारंपरिक प्रक्रिया का अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए कृषि उत्पादन को बढ़ावा के लिए एक कदम है। यह खेती के दौरान कीटनाशक के उपयोग को कम करता है जो खाद्य आपूर्ति की बेहतरी के लिए बहुत अच्छे कदम हो सकते हैं। यह तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को खिला सकता है क्योंकि यह नाटकीय रूप से बढ़ी हुई पैदावार को दर्शाता है। यह भूमि के छोटे क्षेत्र में अधिक उत्पादन कर सकता है। भारत ने 2002 में बीटी कपास के बीज पेश किए। इसने जहरीले कीटनाशकों के उपयोग को बहुत कम कर दिया है।
आनुवंशिक रूप से संशोधित या जीन फसलों के नुकसान क्या क्या हैं उसको बता दें। उत्पादन, पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के विघटन के लिए उच्च जोखिमों को लागू करता है, क्योंकि इंजीनियरिंग जीन से उत्पन्न बेहतर लक्षणों का परिणाम एक जीव के पक्ष में हो सकता है। इसलिए यह अंततः जीन प्रवाह की प्राकृतिक प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। यह खेती की लागत को बढ़ाता है और खेती के विपणन की ओर अधिक झुकाव है, जो अनैतिक लाभ पर काम करता है। ट्रांसजेनिक फसलें न केवल किसानों बल्कि व्यापार और पर्यावरण को भी खतरे में डालती है। यह जैविक रूप से परिवर्तित है, इसलिए बायोटेक खाद्य पदार्थ एक मानक स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं। आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थों के अत्यधिक उत्पादन को समय के साथ अप्रभावी प्रदान किया जाएगा, क्योंकि कीट जो इन विषाक्त पदार्थों का उपयोग करते थे अंततः उनके प्रति प्रतिरोध विकसित कर सकते हैं। On the basis of above features, purpose and advantages of genetically modified crops, it indicates that it is most important in the field of agriculture and especially solve the problem of food. हम कह सकते हैं कि जो इसका उद्देश्य, खासकर इसके जो फीचर्स हैं, विशेषताएं जो मैं अभी चर्चा किया और इसके जो फायदे बताए हैं, उससे स्पष्ट है कि यह खाद्यान्न की समस्या का एक सबसे बड़ा समाधान हो सकता है। साथ ही साथ जो कुछ इंडिजिनस वैरायटी उसमें जो कुछ डिजीज हो जाते हैं, जिनकी रेट ऑफ फर्टिलिटी घट जाती है, इससे हम उन समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और एक और लेकिन बात है कि डिसएडवांटेज की अगर बात है तो वहाँ पर कुछ समस्याएं ज़रूर हैं, क्योंकि इंडिजिनस वैरायटी को अगर हम इग्नोर करेंगे, यानी देसी वैरायटी को इग्नोर करेंगे और हाइब्रिड वैरायटी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाएंगे, तो एक समय ऐसा भी हो सकता है कि खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि खेत की जो सॉइल यानी मिट्टी जो है वो पूरी तरह से फर्टिलाइजर के ऊपर निर्भर रहेंगे या इस प्रकार के हाइब्रिड वैरायटी के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। और विपरीत परिस्थिति में वो वैरायटी अगर नहीं मिलती है तो फिर हमारी जो खेती करने की यानी कल्टिवेशन की जो प्रवृत्ति वो सारी समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि कैसे इसका उपयोग किया जाए, क्योंकि अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ का उपयोग करना नुकसानदायक होता है। हाँ, एक विकल्प जरूर है कि खाद्यान्न की समस्या का समाधान है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने जो देसी वैरायटी, इंडिजिनस वैरायटी है, उसे नहीं भी छोड़ना होगा। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक को आप पसंद करेंगे, इसके नोट्स तैयार करें, बहुत ही फ़ायदेमंद है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगले क्लास में मैं फूड सिक्योरिटी के बारे में विस्तार से बात करूँगा। इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, और यूट्यूब में ये अपलोड किया गया है, आप उसे देखें, पसंद करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।